Hello, welcome back to the channel. So, as we are continuing with the series of interview preparation, so our today's topic is that how to impress the interviewer. Okay, speak to impress, a guide to HR interviews. How to speak in front of HR or interviewers, how to speak in front of them, and how to impress them, how to grab their attention. So, we will see in this lecture. Okay, so interviewers are not means whenever we are speaking or whenever we are giving the interview, they are not just the interrogations. Okay, they are the conversation, they are the communication to get you access or to get you involved. Okay, so myself Sakshi, a technical instructor at Technobrilliant Learning Solutions. So as we are continuing with the series of interview preparation, our today's agenda is that we are going to briefly discuss how to impress the interviewer or how to speak with the interviewer to get him grabbed. Okay. Next. So why HR interviews? Why HR conducts the interviews at the final phase of your hiring? Means first one is your normal aptitude round. Whenever your hiring process starts or whenever your interview process starts, that time your first round is your aptitude round. Okay. Second round is your technical round. Okay, means they guess, they understand about you as well as they get how you will be having your concepts technically sound. Okay, how much you are technically sound in that concept, they will be knowing about that, as well as they will be conducting your behavioral round to guess how you have made an activities in past, as well as they can predict the future from your past circumstances, as well as they will be having your machine round. The third round is your machine round to get your coding activities or to get your skill set. Okay, and the last round is your HR interview round. So in HR interview round, this round are just the purpose of this round is that, or purpose of HR interviews is that to access fit values, soft skills, and real life experiences. Means how much your assess fit, how much you assess fit, or how much you have knowledge, how your soft skills are sounding, or how much you have real world experiences. To get these all things, they attend or they take your HR interviews. What interviewers are really looking for whenever they are conducting HR rounds? Yes, क्या देखते हैं वो लोग आप में, या तो क्या चीज से वो लोग इम्प्रेस हो सकते हैं, या तो हमने उनको कैसे इम्प्रेस करना चाहिए, या फिर वो लोग सही में आपसे क्या जानना चाहते हैं. सो दे जस्ट टेस्ट योर कम्युनिकेशन स्किल्स कि आप कितने फ्लुएंट, कितने अच्छे से बोल पा रहे हो. नेक्स्ट इज योर टीम वर्क. आप एक टीम में कैसे काम कर रहे हो, आप कितने अच्छे से काम कर रहे हो, या तो आप कितने कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हो वहां. ये सब चीजें वो लोग जानना चाहते हैं. एडेप्टेबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन. अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ दिक्कत हो रही है, तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे विद इन अ फ्यू सेकेंड्स और विद इन फ्यू टाइम. वेल एज आप कितने कल्चरल फिट हो, आपको कितना कितनी चीजें अच्छी लगती है, या तो आप कितना मतलब आपका बिहेवियर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ अलाइन हो रहा है या नहीं. ओके, ये सब चीजें, या तो आप वो एनवायरनमेंट में जस्टिफाई हो रहे हो कि नहीं, फिट हो रहे हो कि नहीं. ठीक है, ये सब चीजें वो लोग जानना चाहते हैं. एज वेल एज दे ऑल्सो whenever sorry they highlights that HR interview are less about technical qualifications and more about understanding whether the candidate align with the company's culture and expectations. जैसे आप अगर आप कोई इंटरव्यू में जा रहे हो, तो फिर वो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आप उनके कंपनी के बारे में कितना जानते हो.
आप उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में कितना जानते हो या फिर आपको उनके कल्चर के बारे में कितना पता है. So they just want to know how clearly and how clear and confident your ideas are. आप कितने अपने आइडियाज को अच्छे से बता पा रहे हो, as well as your ability to collaborate and work well with others. आप कितने अच्छे से बाकी आपके कलीग्स के साथ या फिर जो भी आपको टीम में शेड्यूल किया जाएगा तो वो टीम में आप कितने अच्छे से काम कर पाओगे. उसके बाद latter as well as your willingness to learn. वो देखना चाहते हैं कि आप कितने उत्साह से पढ़ते हो या फिर आप कितने आपके में कितनी पोटेंशियल्स है, या तो आप कैसे एडजस्ट करोगे या कुछ चेंजेस हुए तो वो चेंजेस को कैसे हैंडल करोगे. ओके, ये सब कुछ वो जानना चाहते हैं. एज वेल एज हाउ यू हैंडल डिसएग्रीमेंट्स प्रोफेशनली. बिना ऐसे कुछ ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किए या फिर प्रॉब्लम को बढ़ाते हुए आप वो डिसएग्रीमेंट्स को कैसे अच्छे से प्रोफेशनली सॉर्ट आउट कर पाओगे. एज वेल एज आप कितने अलाइन हो रहे हो कंपनी के कल्चर के साथ. ओके, ये सारी जो चीजें है गाइस, ये सारी चीजें जानने के लिए ही एचआर इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं. ओके, सो कॉमन जो एचआर क्वेश्चंस पूछते हैं, सो द कॉमन क्वेश्चंस आर लिस्टेड बिलो. ओके, ये सारे जो मैंने यहाँ पे 7 क्वेश्चंस दिए हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एचआर राउंड में. ओके, sorry, these are some of the questions that are designed to uncover a candidate personality as well as motivation as well as mindset as well as work behavior. ये जो क्वेश्चंस है ये सब पूछने के बाद वो बस ये जानना चाहते हैं कि कैंडिडेट का उसकी पर्सनालिटी कैसी है, कैंडिडेट की पर्सनालिटी कैसी है, एज वेल एज वो कितना मोटिवेटेड है, वो माइंड मतलब वो कैसे थिंक करता है, उसकी थिंकिंग एबिलिटी जानते हैं. ओके, उसका माइंडसेट किस हिसाब से वर्क करता है, वो कितने फ्लुएंटली हमको आंसर्स दे पाता है या फिर वो कितना सोच कर बोल रहा है. ओके, जब वो लोग आपको एचआर क्वेश्चंस पूछते हैं तो आप जितना फ्लुएंट बोलोगे दे विल बी थिंकिंग दैट यू आर स्पीकिंग अपराइट आंसर्स. ओके, एज वेल अगर आप सोच के बोलोगे या तो कुछ ऐसे डिजाइन करके सिनेरियोस बताओगे, सो दे विल बी आल्सो गेटिंग दैट कि आप कुछ तो उनको डिजाइन बता रहे हो या तो कुछ तो आप उनको मीन्स फेक चीजें बता रहे हो. ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका व्हाई शुड आई हायर यू. दिस इज द मोस्ट कॉमन अप्रोच आस्क्ड बाय द एचआर इंटरव्यूअर. एचआर आपको हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई शुड आई हायर यू, मैंने आपको क्यों हायर करना चाहिए. ओके, तो इसके पीछे का पर्पस क्या है. इट इज जस्ट, ये क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सभी को पूछा जाता है और सभी अपनी तारीफ करके बताते हैं कि आपने मुझे क्यों हायर करना चाहिए. तो वो तारीफ नहीं जानना चाहता है आपकी या तो जानना चाहती है. ओके, दे जस्ट टेस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड योर सेल्फ अवेयरनेस. आप खुद के बारे में कितना सच बोल पा रहे हैं और खुद के बारे में कितने अवेयर हो, बस इतना जानना चाहते हैं वो. ठीक है, एज वेल एज दे टेस्ट योर कॉन्फिडेंस. आप कितने कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो, या फिर आप सिनेरियोस डिजाइन करके बोल रहे हो या आप सच बता रहे हो. जितना फ्लुएंटली आप बताओगे उतना फ्लुएंट आपका क्वेश्चन होता है. मीन्स आप जो आंसरिंग कर रहे हो वो अगर उतनी फ्लुएंट रही तो दे विल बी थिंकिंग दैट कि आप कुछ खुद के बारे में एक्सट्रीम सेल्फ अवेयर हो और आप सब कुछ सही से बता रहे हो. ओके, सो जब आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई शुड आई हायर यू, ओके, तो इसका आंसर कैसे दोगे आप कि क्यों आप मुझे हायर करना, मीन्स आपने मुझे क्यों हायर करना चाहिए. यस, सो लेट मी टेल यू, आपने इसका आंसर कैसे देना चाहिए. यू शुड हायर मी बिकॉज आई ब्रिंग अ स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स एंड पॉजिटिव एटीट्यूड. Okay, as well as I am a quick learner, committed to delivery quality work, and I handle challenges with a calm and solution-focused approach. As well as I am confident I can add value to your team and collaborate to goals from
डे वन। ओके, मतलब क्या कि मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग स्किल सेट है, एज वेल एज आई कैन वर्क फॉर यू विथ पॉजिटिव एटीट्यूड। मैं क्विक लर्नर हूँ, अगर मुझे कोई क्वालिटी वर्क डिलीवर करना है तो मैं कमिटमेंट के हिसाब से डेडलाइन के अंदर उसको कंप्लीट कर दूंगा या कर दूंगी। एज वेल एज आई हैव चैलेंजेस, आई कैन हैंडल चैलेंजेस विद काम एंड सॉल्यूशन फोकस अप्रोच। और अगर मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर मुझे आपने हायर किया तो मैं आपके टीम को कोलैबोरेट कर सकता हूँ, आपकी टीम के साथ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ फ्रॉम दी डे वन ऑफ माय हायर डे वन। ओके, नेक्स्ट, ऐसे आंसर्स देने के बाद वो समझ पाएगी कि यू आर सेल्फ अवेयर, ओके, एंड also you are having confident answers. Fine. Next second question है आपका, what are your strength and weaknesses? ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको कि आपके स्ट्रेंथ बताओ और आपके वीकनेसेस बताओ। ये एक्सट्रीम कॉमन एचआर क्वेश्चंस है गाइस, ये हर एचआर पूछना चाहता है या तो पूछता है। ओके, सो जस्ट अभी उसको तो आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस जान के थोड़ी कुछ करना है, या तो वो आपके साथ थोड़ी रहेगा या रहेगी। ओके, दे जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन फॉर गेटिंग योर ऑनेस्टी, आप कितना सच बोल रहे हैं, ठीक है, एज वेल एज वो आपकी मैच्योरिटी चेक करते हैं, आपका ग्रोथ माइंडसेट चेक करते हैं बाय गेटिंग दिस आंसर्स। सो यू शुड स्पीक ट्रुथ, आपने सच बताना चाहिए। यू कैन ऑल्सो स्पीक, मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ, ऐसा कुछ भी बोल सकते हो आप, बाय हाईलाइटिंग योर ओन स्ट्रेंथ एंड योर ओन वीकनेसेस, ठीक है। सो आफ्टर जब आपको पूछा जाएगा व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, सो पहले आपने स्ट्रेंथ बतानी है। ओके, तो आप ऐसे भी बता सकते हो कि वन ऑफ माय की स्ट्रेंथ इज माय एबिलिटी टू कम्युनिकेट क्लियरली एंड एफिशिएंटली। I'm also a quick learner and also a strong problem solver with thrived under pressure and enjoys finding solution to the challenges. Okay. Now, as per my weaknesses, I tend to be very detail oriented, which sometimes can slow me down. However, I have learned to balance it by setting clear properties and deadlines, ensuring that I stay focused on the bigger picture. Guys, अगर आप वीकनेस बता रहे हो, स्ट्रेंथ तो ठीक है, बट अगर आप वीकनेस बता रहे हो तो वो वीकनेस को पॉजिटिव वे से बताओ। जैसे मैंने यहाँ क्या बताया कि मैं डिटेल्ड ओरिएंटेड हूँ। ओके ओके, अगर मुझे कोई चीज दी गई है तो मैं उसके डेप्थ में जाके उसको सॉर्ट आउट करना चाहूंगी या तो उसको कंप्लीट करना चाहूंगी, ठीक है। मैं डिटेल्ड ओरिएंटेड हूँ, जिसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी मैं स्लो डाउन हो जाती हूँ। ओके, मैं डेडलाइन तक काम कर नहीं पाती हूँ। दीज आर माय वीकनेसेस, बट वीकनेस बताने के बाद आप उसको कैसे ओवरकम करोगे ये भी बताना है। ओके, बट हाउएवर अगर मैं ये सब चीज कर रही हूँ, अगर मैं डिटेल्ड ओरिएंटेड हूँ, अगर मैं खुद को स्लो डाउन कर दे रही हूँ, लेकिन फिर मैं क्या सीख रही हूँ इसमें से, मैं ये भी सीख रही हूँ कि हाउ टू बैलेंस इट बाय सेटिंग क्लियर प्रायोरिटीज। ओके, मैं इससे क्या सीख रही हूँ कि प्रायोरिटीज को कैसे बैलेंस करना है। ओके, प्रायोरिटीज और डेडलाइंस को कैसे बैलेंस करना है और विद इन डेडलाइन वर्क कैसे कंप्लीट करना है, वो चीज पर फोकस्ड कैसे रहना है, ये सब मैं ये चीज से सीख रही हूँ। ओके, सो आप जब वीकनेस बताओगे तो वीकनेस में आप ये भी बताना कि अगर मैं यहाँ पे वीक हूँ, लेकिन पॉजिटिव वीकनेस बताना जो कि आगे वाले के लिए काम आए। ओके, ऐसे वीकनेस बताओ जो उनके इंडस्ट्री के लिए काम आए। जैसे आप डिटेल्ड ओरिएंटेड बोल सकते हो, जैसे मैंने बताया कि डिटेल ओरिएंटेड हूँ। डिटेल ओरिएंटेड मतलब अगर कोई चीज दी गई है मुझे तो मैं उसके डेप्थ में जाके उसको सॉर्ट आउट करूंगी, बट फिर मैंने उसको ओवरकम कैसे करती हूँ या फिर उसमें से सीख क्या रही हूँ ये भी बताया है कि मैं खुद के प्रायोरिटीज को सेट करना और खुद के डेडलाइंस को सेट करना मैं सीख रही हूँ।
उसके बाद फोकस्ड कैसे रहना उन चीजों पे, ये भी मैं सीख रही हूँ. गेटिंग. Next one is that the third question which is asked by the common HR interview question which is asked by the HR interviewer is that where do you see yourself in 5 years? It is the most common question guys. ये हमेशा पूछा जाता है कि आप खुद को 5 साल में कहाँ देखना चाहते हो. ओके, ये क्यों पूछा जाता है? यस, आपकी स्टेबिलिटी जानने के लिए. ओके, आप कितने अलाइन हो कंपनी के ग्रोथ के साथ वो जानने के लिए, एज वेल एज आपके एम्बिशंस जानने के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है. अब आप क्या करोगे 5 साल बाद, उससे तो उसका कोई लेन देन नहीं होता है ना, लेकिन बात इसलिए की जाती है, ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है जस्ट टू नो योर स्टेबिलिटी, योर एम्बिशंस, एज वेल एज हाउ मच यू आर अलाइन विद द कंपनीज ग्रोथ और ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ. ठीक है, तो गाइस इसका आंसर कैसे दोगे आप? एक पॉजिटिव आंसर देना होगा आपको. आपको ऐसे नहीं बताना होगा कि मैं 5 साल में कुछ तो बहुत ही बड़ा करना चाहता हूँ या खुद का स्टार्टअप करना चाहता हूँ. तो अगर 5 साल बाद तो खुद का स्टार्टअप करना चाहते हो गाइस, तो फिर वो कंपनी आपको क्या सोचेगी आपके बारे में कि आप स्टेबल हो ही नहीं. आपको उनकी कंपनी से कोई लेना देना है ही नहीं, ऐसा समझ आता है. ओके, सो यू शुड आंसर where do you see yourself in 5 years? After 5 years आप खुद को कहाँ देखना चाहते हो? So you should answer in that 5 years I aims to be in a senior position where I contribute at higher level, takes on greater responsibility, contribute to the company's success and grow both professionally as well as personally. दोनों चीजें बताना है. बस आपके पर्सनल इंटेंशन पे फोकस ना करते हुए आपको कंपनी के साथ अलाइन करना है खुद को और फिर आंसर्स देना है. ओके, इन 5 years मैं कहाँ होना चाहती हूँ? आई एम्स टू बी एट सीनियर पोजीशन. मैं सीनियर पोजीशन पे रहना चाहती हूँ, एज वेल एज हायर लेवल को कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ, एज वेल एज I will take the greater opportunities or responsibilities and I will contribute to the company's success and I want to grow both professionally as well as personally. Get it? The next one is that how do you refer to build relationship with others? अगर आपको relationship build करना है, so how do you refer to build relationship with others? ये जब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस, तो ये इसलिए पूछा जाता है कि आपका जो रिलेशन बिल्डिंग स्टाइल है या फिर आप जिस तरह से रिलेशन बिल्ड कर रहे हो वो जानना चाहते हैं कि आप मीन्स what do you indicate your emotional intelligence or do you indicate your interpersonal skills? ओके, आप इमोशनली अटैच होते हो या आप इंटरपर्सनल स्किल्स से अटैच होते हो. जस्ट ये जानने के लिए आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ डू यू रेफर टू बिल्ड रिलेशनशिप विद अदर्स. You can answer for this question. I refer to build relationship through open communication and mutual respect. Okay. I make an effort to understand others, communicate clearly, and follow through what I say because trust and teamwork matter in any workplace. I also value feedback and maintain a collaborative attitude to create a positive and productive working environment. Get it? आपको बस प्रोफेशनली आप कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करोगे ये बताना है. बिकॉज ट्रस्ट एंड टीम वर्क मैटर्स अ लॉट इन योर वर्क प्लेस एज वेल एज आई वैल्यू. मैं ये भी चीज को वैल्यू करती हूँ कि मेरा फीडबैक ना खराब हो और मैं जो मेंटेन कर रही हूँ कोलैबोरेटिव एटीट्यूड जिससे मुझे आई विल क्रिएट अ पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव
वर्किंग एनवायरनमेंट। अगर आपका वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा रहा तो आपका आउटपुट अच्छा रहेगा। गेटिंग? नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, ऐसे ही कुछ कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गाइस, और मैं इसलिए आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाए तो आपने किस तरह से अपना पर्सनल आंसर देना है। ऐसा नहीं कि मैं जो आंसर बता रही हूँ वो कॉपी करना है, इट्स माय ओन पर्सनल आंसर्स, बट you can also answer the questions like that, but with some modifications of your personal attitude. Okay, next question is that, what are your short term and long term goals? ये आपके गोल्स क्यों जानना चाहते हैं ये लोग? yes, because it helps employer see if the candidate has direction. वो जानना चाहते हैं कि आप क्या करना चाहते हो, आपका कोई गोल है क्या लाइफ में, आप कितने डायरेक्टेड हो। ओके, सो whenever this question is asked, what are your short term and long term goals, in that you should answer with your personal short term and long term goals। ठीक है, आप अपने पर्सनल शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स बताओ वहां। जस्ट आई विल टेल यू हाउ यू शुड आंसर। सो एज एज ऑफ माई शॉर्ट टर्म गोल, पहले आपने अपने शॉर्ट टर्म गोल ब्रीफ करना है। My goal is to join a dynamic team where I can apply my skills, learn from expert professionals, and contribute to the team's success. Okay, as well as my long-term goals are, my long-term goal is to achieve higher position in my profession। जो मेरा प्रोफेशन है उसी में मैं करियर करना चाहती हूँ, उसी में मैं एक हायर पोजीशन गेट करना चाहती हूँ। ठीक है, सो यू कैन आंसर इन दिस वे फॉर योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। आप अपने हिसाब से अपने प्रोफेशनल लाइफ, अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को इंडिकेट करते हुए सारे आंसर्स दे सकते हो। जस्ट कौन से वे में देना है मैं आपको ये बता रही हूँ। द नेक्स्ट वन इज दैट, डू यू वर्क वेल विथ अदर पीपल्स? आपको अगर एक टीम में काम करने को दिया तो पहले से तो आप नहीं जानोगे ना वो लोगों को, सो वो अननोन पर्सन्स के साथ आप कैसे वर्क करोगे, या फिर आप कैसे चीजों को अचीव करोगे, उनके साथ कैसे कोलैबोरेट करोगे, टीम वर्क कैसे दिखाओगे, ये क्वेश्चन, ये जानने के लिए क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। इन शॉर्ट आपके टीम कैपेबिलिटीज जानने के लिए क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, जस्ट फॉर योर कोलैबोरेटिव वर्क एनवायरनमेंट। आप कोलैबोरेटिवली कैसे काम करोगे अपने वर्क एनवायरनमेंट में, ये जानने के लिए आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डू यू वर्क वेल विथ अदर्स? सो हाउ यू शुड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट, यस, आई वर्क वेल विथ अदर्स। I believe that teamwork and clear communication are key to achieving common goals. I make an effort to be supportive, respectful, and open to different perspectives, which help create a positive and productive team environment. Okay. Now, the last common question of HR is that, rate your communication skills from 1 to 10. अब ये कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों रेट कराने लगाते हैं आपको? खुद की कम्युनिकेशन को स्किल्स को खुद ही को रेट कराने लगाते हैं, बिकॉज दे असेस सेल्फ इवैल्यूएशन स्किल्स एंड कम्युनिकेशन अवेयरनेस। जस्ट देखने के लिए कि आप खुद की कम्युनिकेशन से कितने अवेयर हो। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड टू यू दैट, how would you rate your communication skills from 1 to 10? So you should answer personally for this, but let me give you an example कि आपने कैसे आंसर करना चाहिए क्वेश्चन को। I did rate my communication skills around 8 out of 10 as I communicate clearly, listen actively, and adapt well to different situations. Said I'm always looking for ways to improve through feedbacks and experience. Okay, आप अगर खुद को बहुत अच्छा रेट कर रहे हो, जैसे 7 to 8 तक, तो या फिर 9 तक, तो फिर ये भी बताओ
कि आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर द वेज टू इम्प्रूव थ्रू फीडबैक्स एंड एक्सपीरियंसेस। अगर मैं कहीं गलत हो रही हूँ तो मैं फीडबैक्स को वेलकम करूंगी और वो फीडबैक से चीजें लर्न करूंगी। ओके, अभी इसमें मैंने एक क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया है गाइज, लेकिन मैं आपको वो ओरली बताती हूँ। ऐसा भी पूछा जाता है कभी कभी, हाउ वुड यू कन्वे निगेटिव और बैड न्यूज। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ हो रहा है या आपके टीम में कुछ हो रहा है, तो आप वो, अगर वो न्यूज बैड है या फिर निगेटिव है, तो आप उसको कैसे कन्वे करोगे? यस, I deliver bad news honestly and kindly and clearly explaining the situation. मैं वो बैड न्यूज को कैसे कन्वे करूंगी, बहुत ऑनेस्टली जो है वो बताऊंगी, बट मैं उसको यूजिंग काइंडनेस, पोलाइटनेस एज वेल एज एक्सप्लेनिंग इट क्लियरली। ओके, सिचुएशन को क्लियरली एक्सप्लेन करूंगी, एक्नॉलेजिंग इट्स इम्पैक्ट एंड फोकसिंग ऑन सॉल्यूशन टू मेंटेन ट्रस्ट। उससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है और फोकस करूंगी कि उसका कैसे सॉल्यूशन निकलेगा और सही से कैसे चीजें चलेगी। ओके ओके, these are some of the common HR questions asked by the HR to the candidates. Okay, so at the last, I would like to convey you the message that it's not what you say out loud, but what you demonstrate through your words. आप कितने जोर से बोल रहे हो, कितने धीरे बोल रहे हो, it doesn't matter. Okay, but what you demonstrate through your words, it matters a lot. आप क्या बोल रहे हो, कितने अच्छे से बोल रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। Before concluding with the final takeaway, I would like to tell you that, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, communication isn't just a speaking. Okay, communication मतलब जब बस बोलना 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 नहीं होता है. It's about conveying professionalism, conveying confidence and clarity through your responses. आप कितने क्लियर हो, आप कितने पोलाइटली बोल रहे हो, आप कितने अच्छे से बोल रहे हो, आप कितने प्रोफेशनली बोल रहे हो, it matters more instead of only speaking. Okay, you should also emphasize your tone. आप किस तरह से बोल रहे हो इंटरव्यू में, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप कितने कंसिस्टेंट हो। ओके, एज वेल एज आप किस तरह से बोल रहे हो, ये सब चीजों पे आपने ध्यान देना चाहिए या तो फोकस करना चाहिए। ओके, सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।